जी मुझे अभी याद आ गया था। थैंक यू फॉर मैं। यस शालिनी। ये जब लिख रहे हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड के लिए, तो क्या ये रोज लिखना पड़ेगा कि ये जो लिखे हैं आज वो ही अगर रोज पढ़ेंगे तो हो जाएगा? बिकॉज मुझे तो आज एक ही दिन में 10 लिखने में बहुत प्रॉब्लम हुआ है। इट विल, बिकॉज हम लोग इतना नेगेटिविटी पे ध्यान ज्यादा फोकस था ना, वो पॉजिटिव नजर ही नहीं आ रहा था। तो हम लोग, आप शायद देख कर करके खोद खोद के निकाले हो, राइट? एक्चुअली इट्स एन और एफर्ट। लास्ट 2 में तो एकदम ही परेशान हो गई, समझ ही नहीं आया कि क्या लिखूं। But ठीक है, I still managed to, but every day writing something different is going No, to be very if you, difficult. yeah, if even if you can't write anything different, आप उसी चीज को रोज रोज लिखो, but it's a concentrated gratitude till you start feeling a little better. You keep on doing every day. Okay. और at times क्या होगा, लिखते लिखते you might, you know, if you go back and you find कि नहीं ये एक positive point और भी है, I can write, you know, तो और dig करना होगा, और dig करना होगा. It's difficult to dig, you know, negative situation में होता ही ऐसा, it's difficult to dig, but we need to do that. Okay, thank you so much. Thank you. But also share how was the feeling after writing, like you are like done with? Lighter, feeling lighter actually. Okay. Feeling lighter. Yeah. So that's the first step. If you started feeling lighter, that means you're on the way. The motion has started. Okay. Anyone else who would like to share, did the assignment? How was the feeling? और किया ही नहीं किसी ने, कि नेगेटिव सिचुएशन ही नहीं है लाइफ में, मेरे तो कोई है ही नहीं है। नहीं किया है। नहीं कर लिया। नहीं किया है, लेकिन एक बार मुश्किल हुई कि कौन से पर्सन को ले या क्या ले, एकदम इंस्टेंट नहीं समझ में आया कि हाँ। एक्चुअल में बहुत सोचना पड़ा कि हाँ ये इसको, क्योंकि ऐसा ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं कि मेरे कोई ग्रज है किसी के लिए या बहुत नेगेटिविटी है कोई पर्सन के लिए, लेकिन फिर बाद में आई थॉट कि ठीक है, आई कैन राइट अबाउट दिस पर्सन, लेकिन एक्चुअली आई थॉट कि ओनली वंस वी हैव टू डू, बट शालिनी and now I came to know that every day you have to write 10 blessings. See, if you want that negative situation to improve or to resolve or to vanish, so we have to do it every day. This is concentrated gratitude. हो सकता है health area में हो सकता है money area में हो, whatever area. It doesn't have to be with a person. It can be some situation in the house. अमेरिका से कर रही है। Right? So many examples are there in the book if you go through. I would request everyone to, you know, get hold of the book, because, you know, PDF से वो नहीं होता है, but if the book is next to you, you can always, you know, pick it up and do it. So we can write any other negative situation also the next day? Yes, if you want that situation to improve, you know, to resolve, to be resolved. इसमें तो end में लिखना ही है ना, thank you for the perfect resolution. Right? So we have to do that. So is this book available online? Yes, Amazon पे है, very easily available. Okay. Do order, because ये ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया उसके बाद ये बुक काम पे नहीं आएगी, काम में नहीं आएगी. It is always helpful, you know. मेरे तो मतलब वो साइड टेबल पे ही रहता है. Like if health breakdown है, I know which chapter to go through. Open the index, उस पेज में क्या assignment है. If you don't remember, just start doing that. If you're not feeling good, you know how to, your negative situation wala, open the chapter, start doing the assignment there and then. Since हाँ, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि एक बार सेशन करने से वो सब कुछ नहीं याद रहता है. Like you can't remember each and everything, how to resolve issues and all. Right. So we have to go through again and again. Again and again, you know. It is like that. It's like, you know, a Bible or a Bhagavad Gita. It's like that. It is a coach in itself. You know, खुद ही एक कोच है ये. हम लोग को किसी और के पास काउंसलिंग के लिए कोचिंग के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा. If you go through this book and follow this book to the T, the way it has been designed and structured. So everything is there. Answers are there in the book only. And I would also say, क्या होता है जब स्क्रीन पे भी होता है ना, many must not be reading it. I'm sure कि वो कोई रीड कर रहा है, we skip 2-3 lines. मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, खाली वो पार्ट सुना, so we skip. But when you yourself go through the book, there are so many lines. Oh, ये तो मैंने सुना ही नहीं उस समय, समझा ही नहीं. I might also, you know, not explain each and every line. So you come across so many things and you understand better.
So it's always better to read the book. Like after the class also, if you can read that chapter every day, one chapter only. Don't make it like एक बार में 2-3 कर लिया. Do it one chapter a day, and that's how we do the assignment also. So we cover all the areas of our life, you know, and we become the way we want to be. So it's Yeah, that. today I read Magic Health. I liked it and I really enjoyed that. When you read, you complete all the points. Absolutely. Otherwise, yeah. Otherwise, when you होता ही है, give skip also. your hand, you don't know what to say and what to write. Yeah. When you read, you complete everything. Each and every, you know, examples are there. So many examples are there. How to write, you know, everything is there in the book. So वो क्या होता है, book के बाद जब reading के बाद you don't remember, you know, which language you have to write. So instead of me telling you, if you go to the book, everything is written over there, how to write and how to say, how to pay gratitude. So you can do that. So reading is always help and it's very good. So I know of people also जो reading में नहीं है, you know, they've never ever read something or not into a habit of reading, but this everyone has started. और इससे बल्कि develop हो गया reading habit. Now they want to read more books now because it's a small chapters you read, do the assignment, very easy. So everyone can do that, even if you're not into reading. Then also you can follow. Thank you. And language is not a barrier. अगर आपको हिंदी में comfortable है, हिंदी में भी ये book available है. There are many languages. I think 47, 40 कितना languages में available है this book. So whichever language you are comfortable in. And मैं ये भी बोलना चाहूंगी क्योंकि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं say thank you. But if you are more into Hindi speaking or your like you know vernacular language जो भी है, अगर उसमें comfortable है, idea is वो feeling आना चाहिए. अगर thank you में feeling नहीं आता है, don't say. Shift to धन्यवाद और क्या होता है, whichever language you are comfortable in. शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद और your language. The feelings देखिए जिसमें आता है. मेरा कितनी बार हिंदी में अच्छा आता है feelings. So I say it in Hindi. It's okay. किसी में English में आता है. It's like all about your feelings. Because universe only understand the language of your feelings, the vibration, the frequency of your feelings. वो वही catch करता है. So it's not about your English, Hindi कि English में लिखा है, English में बोलना है. अगर feelings नहीं आ रही है, no point. So feelings आना जरूरी है. हिंदी में बोलिए. Buy the book in Hindi, read the book in Hindi. जो ये assignment है, उसमें लिखा हुआ है हिंदी में कैसे लिखना है. तो आप उसको हिंदी में लिख सकते हो. डेली के ब्लेसिंग्स आप हिंदी में भी लिख सकते हो. इफ यू वांट टू राइट इन अ मिक्स, जैसे हम लोग रोज जैसे बात करते हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स, यू कैन राइट इन दैट वे आल्सो. आइडिया इज टू हैव अ फीलिंग. यस. तो और किसने किया कल का असाइनमेंट एंड शेयर हाउ इट्स फीलिंग. यू नो ऑलवेज फील लाइटर. एंड ये हर लाइफ में हमेशा काम आएगा. नेगेटिव सिचुएशन ऐसे तो है नहीं कि कभी आएगा ही नहीं. लाइफ में अप्स डाउन्स होते ही रहते हैं. Down time will be, it's like part of our life. जितना जल्दी accept कर लेंगे, it will be easy for us to come out of it. कि ये तो आएगा ही आएगा. Be prepared for it. It cannot be कि हर चीज perfect हो life में. Life भी perfect नहीं, हम लोग भी perfect नहीं है, situations भी perfect नहीं होते हैं. तो हर type का jealous people, envious people, you know, they'll always try to pull us down. Negative people जो बोलते हैं होंगे ही होंगे life में. But we learn how to overcome that. And जो इसमें रहते हैं, gratitude में रहते हैं, it is very easy for them to overcome. See, it is there. I'm doing this hero book by Rhonda Byrne. And उसमें कैसे hero बनना है, मतलब life में कैसे successful होना है, इसमें भी एक ही चीज लिखा है. If you are facing a problem or if you have hit a dead end and you can't see any way out, the act of deep gratitude will clear the way. So कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, this is the only way out. Gratitude causes the universe to issue a free pass that enables you to jump over the obstacle. मतलब gratitude ही है जो हमारे लाइफ में जितने भी obstacles वगैरह आएंगे, वो यूनिवर्स क्या करेगा, अगर हम लोग ग्रेटफुल हैं, वो अपने आप हटता जाएगा. And we can, you know, overcome that. So there is no other way out. इसीलिए हर चीज का कहीं से भी पकड़िए. हीरो बनना है या पावर बुक का डीप फीलिंग्स लव के बारे में, अल्टीमेटली मैंने देखा है, it comes to one thing, gratitude. We start
the cycle with gratitude, and then we अगर बहुत ही ग्रेटफुल होने लग गए हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड से अपने हर एक सेल में ग्रेटिट्यूड आ गया है, then next step is to give love to everything and then to become a hero. The starting point is always gratitude. This is the easiest book. That is why सब book पढ़ने के बाद भी the easiest to follow day to day is this, the magic. Right. So आज का no one has any other sharing? Yeah. कि अच्छा अभी आज हम लोग का है day 8. That means we are through with 7 days. 1 week gone. You know, तो हम लोग अब upgrade हो रहे हैं. Montessori से we are coming to the primary level now, right? So वो हो गया खत्म. The grounding part is done. Foundation part is done. Now let us see. We'll apply more into our life and we'll make our aura, the magnetic field, a little more stronger. Right? So abhi 1 week ke baad, how is the feeling? You start feeling a little lighter, right? A little happier maybe. And then second week baad, you can see all the more changes, isn't it? तो ऐसा कुछ changes दिख रहा है किसी को? हाँ दिख रहा है मुझे लगता है कभी कभी बच्चों पे जल्दी गुस्सा आ जाता था, right? अब लेकिन नहीं आ रहा है. Yes. एक्चुअली नहीं आ रहा है. And after 4 weeks कितने चीजों के लिए लगेगा मैं इसके लिए इतना गुस्सा कर लेती थी, ये तो बहुत ही trivial matter था, we can let it go, है ना? वैसा भी आएगा after 4 weeks. And then we'll speed it up. Ultimate हम लोग का होना चाहिए to focus on dreams and desires. Yes, Namrata ji. Now, Payal ji, our children are also helping us out. They also, when we get angry, they tell us, Mama, don't get angry. Pay gratitude that we are listening to you at least. Say thank you, thank you, thank you. Lovely. अच्छा है ना, बच्चे भी हम लोग से सीखते हैं. They are really helping us, really. ये हम लोग कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अभी तक लग रहा था क्या करेंगे इन लोग लाइफ में, अपने आप अपना ही काम नहीं कर पाते तो मेरा क्या करेंगे. Now they are helping. At times when we have those negative thoughts, we are literally fighting with it to get it positive. No, why are we cribbing for this? We need to say thank you instead. Absolutely, absolutely. वही तो हीरो बन जाता है. जो अगर सक्सेसफुल कोई पर्सन हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है कि उसके लाइफ में स्टार्टिंग से सब कुछ अच्छा हुआ है, परफेक्ट सिचुएशन हुए हैं, परफेक्ट लोग उसके लाइफ में आए हैं. इट इज नॉट दैट. इफ यू पिक अप एनी ऑफ देयर ऑटोबायोग्राफीज, विल फाइंड उनके लाइफ में भी आया है. बट व्हाई हैव दे सक्सीडेड एंड बिकम अ हीरो इन देयर लाइफ? बिकॉज उन्होंने कभी भी परसिस्टेंस रहे, डिटरमिन रहे, कभी भी छोड़ा ही नहीं. हम लोग क्या है ना, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं लाइफ में. And why me, only me, this is happening with only me. We give up very fast. So we have to be a little more persistent in our life and we have to keep going, keep pushing ourselves. And the gratitude is the easiest way. इससे अच्छा है बैठे बैठे खाली आपको सबको थैंक यू बोलना है, ग्रेटिट्यूड देना है. I don't know, you don't have to flog yourself also. Yeah. So today again is a very, very important chapter, the magic ingredient. What is this ingredient? क्या इंग्रेडिएंट हो सकता है? इंग्रेडिएंट हम लोग कहाँ के लिए यूज करते हैं? कुकिंग, कुकिंग, फूड कुकिंग, यस, फूड किचन में यूज करते हैं. यस, किचन में देयर आर मेनी इंग्रेडिएंट्स. यस कल्ला जी. यस, हाउ आर यू पायल? एकदम मस्त, फैबुलस. वेरी गुड, थैंक यू. बहुत बढ़िया. या, गुड टू सी यू बैक. या, So who would like to read today? May I? okay. No, if she wants, she can read. Yeah, no, go ahead. I'll read tomorrow. Okay. कौन Oh. read करे? Please take your name. I can't see now like that. Archana. Okay, Archana. अच्छा आंटी, आप कल आप कल यूज कर लीजिएगा. तो tomorrow we have book. सामर्थ का वीडियो ऑन था, बट सामर्थ तुम परसों पढ़ लेना. Yes. He's always eager to read. That good to see. Okay. You're sharing the screen? हाँ जी, I have shared. नहीं दिख रहा है? No, I've got only the picture. हाँ, अभी पिक्चर first- है. हाँ, पिक्चर ही हाँ. है उधर अभी. Right. Day Day 8, हाँ. the magic ingredient. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए. Thank you. So we can see here in the picture. ठीक से नहीं आ रहा है. Your cup is there and maybe a tea is there and magic all around. तो उसमें ऐसा हम लोग क्या बनाते हैं कि ये इतना मैजिकल हो जाता है?
राइट, सबका अच्छा नहीं बनता है ना, कोई गुस्से में बनाते हैं तो चीनी ज्यादा, चाय पत्ती ज्यादा कड़वी हो जाती है. So what is this magic ingredient जिससे ये बहुत ही delicious हो जाए, अच्छा हो जाए and magical हो जाए, so that we want to have it again and again. Let us read. They ate the magic ingredient. A thankful heart hath a continual feast. W.I. Cameron, 1879 to 1953. Journalist and businessman. Giving W.J. thanks- Cameron. W.J. Cameron. So a W- thankful heart hath a continual feast. मतलब feast मतलब कि बहुत सारा खाना, दावत. isn't it? अब दावत. पार्टी बोलते हैं, दावत. Exactly. दावत जो लगते हैं उसको feast बोलते हैं. तो देखेंगे जो हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, जो हर चीज के लिए ग्रेटफुल रहते हैं, तो उनकी लाइफ में ये नहीं कि बहुत सारा खाना, वैसे खाना का मतलब नहीं है कि जो थैंक्स बोलते हैं उनको बहुत खाना मिलता है. डजंट मीन दैट. जो बहुत ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, उनकी पूरी लाइफ एक फीस्ट की तरह होते हैं. मतलब उन जो चाहते हैं वो उनको मिलता है, क्योंकि वो हर चीज के लिए ग्रेटफुल है, तो वो उसी चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. बी इट इन हेल्थ एरिया, बी इट इन मनी एरिया, be it in relationship, be it in a career, job, whatever. तो जो पर्सन फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड रहता है, उसकी लाइफ हमेशा एक फीस्ट की तरह होती है. And he chooses from the feast whatever he wants to have. Yes, Arjuna. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Right. तो देखिए, हम लोग का तो बोलना नहीं चाहिए, हम लोग के तो कल्चर में ऑलरेडी था, बट यू नो वी स्लोली वी आर मिसिंग आउट ऑन इट, वी आर लीविंग दैट. इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज पहले याद है, पहले हम लोग के बड़े जो होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने तो अपने जैसे पेरेंट्स से ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, खाने से पहले दे ऑलवेज यूज्ड टू प्रे, और यू नो वो थोड़ा सा खाना निकाल के जो वो करते हैं, दैट इज व्हाट एक्चुअली पेइंग ग्रेटिट्यूड, एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल फॉर द. पंडित जी लोग को हम लोग करते हुए देखे हैं, एंड हम लोग के पहले के लोग सब करते थे. एंड इवन इन अमेरिका एंड ऑल, उन लोग का जो थैंक्स गिविंग होता है, इवन बिफोर ईटिंग द मील दे ऑलवेज प्रे. स्कूल में तो सिखाया जाता है, लंच ब्रेक के पहले वी ऑलवेज प्रे, इजंट इट? द थिंग इज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली हम लोग सब उसको भूल गए, छोड़ते जा रहे हैं, बिकॉज वी आर इन अ फास्ट पेस लाइफ, हम लोग सिर्फ भाग रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसी को हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग को लग रहा है हम लोग को अर्न करना, बाहर जाना, इसमें हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हम लोग को लग रहा है ये सेकेंडरी है. बट नाउ वी विल रियलाइज एंड वी विल रीड टुडे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं, राइट, दैट इज ओनली मेकिंग अस, वही तो हम लोग का हेल्थ है, एंड हेल्थ इज वेल्थ. So whatever we are eating, if we are not being grateful for whatever we are eating, उसका इफेक्ट ही अलग होता है. पहले के लोग बोलते थे नहीं थे, खाने के टाइम में बातें मत करो, यू नो. और जैसे मैंने सुना है बच्चों के लिए, हम लोग के बड़े बोलते थे, रो रो के खाओगे तो फलेगा थोड़े, लगेगा थोड़े बॉडी में, बोलते थे ना, हंसते हुए खाओ. तो our thought, whatever is our thought going on in our mind, whatever we are feeling right now is very important when we are eating. इस पूरे चैप्टर का जिस्ट में मैं आपको बता देती हूँ, यही इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो मना करते हैं टीवी देखते हुए मत खाओ, बच्चे अभी इतना नहीं समझते हैं, लेकिन see whatever effect it is having, we are catching that with our food, it is going inside our body. आप एक तो कितने वीडियोस देखेंगे, वाटर का कितना इंपॉर्टेंट है. वाटर, उसमें भी एक तो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं वो साउंड से. You know, it has molecules inside it. It all changes. So whatever our thoughts are, और उसके साथ हम लोग खा रहे हैं, अगर नेगेटिविटी के साथ खा रहे हैं, तो वही एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर जा रही है, और वो घर कर ले रही है. So it is very important to pray. Pray करने से क्या हो रहा है, वो जो फूड, जो खाना बनाया है, हमें नहीं पता वो किस एनर्जी के साथ बनाया है, राइट? पहले के लोग इसलिए बोलते थे ना कि घर के मेंबर को खाना बनाना चाहिए. हम लोग सोचते थे दिस इज एन ओल्ड ट्रेडिशन, स्टाफ रखो, कुक रखो, बट उनका इंटेंशन ये नहीं था. मेन इंटेंशन मुझे भी अब समझ में आया है, बॉस, क्योंकि घर के लोग जब भी अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाएंगे,
we will make it with lot of love and good intention, है ना? और नहीं भी बनाएंगे तो आजकल जो फोन में बात करते करते हम लोग खाना बना रहे हैं, राइट? एंड अगर किसी से लड़ाई हो गया तब गुस्से में जाके बना रहे हैं, नो, दैट इज ऑल इम्पैक्टिंग अस, our health also and our mind also. So we should avoid. So we should always pay gratitude before eating our food. And we will see that using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in our life exponentially. अभी तक था कि manyfold multiply हो जाएगा, अब exponentially is all the more better and better. Right? So we have to be grateful. We must always do that. Yes. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not साइन think करके or खत्म function करना इसको, normally. कितना डिले कर रहा है. हाँ, बहुत डिले कर रहे हैं. प्लीज आप म्यूट कर लीजिए. आई विल म्यूट ऑल. अर्चना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. Yes, now see how important. हम लोग थोड़ी देर भी भूखे रहते हैं तो कैसे हो जाते हैं ना. बच्चों में देखा होगा, उन लोग को पता ही नहीं चलता है, बट दे गेट इरिटेटेड, एंग्री. तो हम लोग के अंदर के हर एक सेल में हर एक जन को फूड चाहिए. दे ऑल आर वर्किंग एंड दैट ओनली मेक्स अस, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, सोच पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, क्योंकि वो गुस्से में, इरिटेशन में आ जाएंगे. तो रिमेंबर द फीलिंग चार्ट. गुस्सा, इरिटेशन, वो नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे एंड इट हैम्पर्स आवर हेल्थ एज वेल. So to be grateful, we always, before eating our food, we always have to be grateful. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Right. So अभी तक हम लोग ने कितनी बार सोचा, हम लोग खाली एक प्रोडक्ट घर में ले आते हैं ग्रोसरी स्टोर से और वी जस्ट कुक एंड वी ईट. Have we ever thought इसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, एंड उन लोग कितने, जैसे स्पेशली द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हम लोग को रोज फ्रेश चाहिए, कितना फ्रेश मिल जाता है, लेकिन वो कहाँ ग्रो हो रहा है, वो कहाँ से हम लोग के घर तक आ रहा है, बट तब तक वो फ्रेश रहता है. तो कितना हम लोग सोचिए टाइम टू टाइम, सो दैट वी गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो हम लोग टाइम पे ग्रो कर रहे हैं, टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, टाइम पे हम लोग के घर तक आ रहे हैं. हैव वी एवर बीन ग्रेटफुल टू दोज पीपल इन्वॉल्व्ड? कभी सोचा ही नहीं ना उनके बारे में. हम लोग को लगता है पैसे तो दे रहे हैं, बट पैसा एवरीथिंग नहीं है. इसीलिए तो आज वो फार्मर्स का सबका इतना इश्यू हो रहा है. हैव वी एवर थॉट ऑफ द फार्मर्स हु ग्रो देम? कभी उन लोग के लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया. अब खाने के टाइम हमेशा सोचते हैं, स्पेशली दीज, मैं तो सोचती हूँ ये जो धनिया पत्ता, पालक, ये सब चीज देखिए, 2 दिन में क्या, हम लोग के यहाँ तो सुबह से शाम में भी अगर उसका ठीक से ध्यान नहीं रखे, कैसे उन लोग मुरझा जाते हैं, काले हो जाते हैं, isn't it? बट उन लोग सोचिए कहाँ से वो आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को तो भी फ्रेश ही मिल रहा है. हाउ आर दे मेंटेनिंग और हाउ क्विक दे आर, उनका कितना चैनल्स है ऐसे एकदम टाइम टू टाइम. So have we ever been grateful to those people who are involved in all this and giving us all these items? अब लगेगा ऐसे करने जाएंगे तो कितने लोग हैं, बट एट टाइम्स जब भी हम लोग खा रहे हैं उनको एक बार मन में थैंक यू तो बोल सकते हैं ना. We can do only that much, right? Think about the meat growers, fishermen. एक मिनट. Fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day,
And it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, and supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. राइट सो ये सब चीज लोगों के बारे में सोचिए जो कॉफी टी डेली हैं, वो कहाँ पे कॉफी टी ग्रो हो रहा है, असम, दार्जिलिंग, हर एक का चीज सोचिए। हम लोग के हर एक स्टेट में, इंटर स्टेट, हर एक हम लोग को कितना पहले से प्लान करना पड़ता होगा ताकि हम लोग के पास अवेलेबल होए, राइट। वैसे ही हम लोग के इंडिया, अब तो इंटरनेशनल चीज भी हम लोग के पास अवेलेबल होने लग गया है, हम लोग की चीज भी बाहर जा रही है, इंडिया की भी बाहर जा रही है। तो जैसे स्ट्रॉबेरीज हम लोग को बोलते हैं ना, यहाँ का महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरीज आ गया, यहाँ का आम आ गया, वी जस्ट गो एंड बाय एंड वी जस्ट ईट विदाउट थिंकिंग कहाँ से वो, कैसे वो फ्रेश का फ्रेश आ रहा है। तो लोग कितना जल्दी उसको कैसे पैकेजिंग करते होंगे और कैसे यहाँ पे पहुंचाते होंगे। तो एवरी पीपल आर इन्वॉल्व एंड हर एक जगह में, ये नहीं कि एक सिटी में एक जगह ला दिया एंड देन यू गो एंड टेक। So every people involved in all these transportation, we should be thankful and grateful to those people. किसी दिन अगर उन लोग ने मना कर दिया तो we will not do, we will not send, क्या है मेरा, क्या है, मैं तो वहां से एक जगह ले आऊंगा, come and go and take from here, can we do that? नहीं। लेकिन all people are involved, सब तो पैसे के लिए कर रहे तो क्या हुआ, हम लोग पैसे दे रहे तो क्या हुआ। साइंटिस्ट वो इतना बड़ा आइंस्टाइन, he used to be grateful for all the people involved in growing all these. Every day he used to say thank you to those people. Every day he used to be grateful for all these people who has supplied everything to them, all the goods, fruits, vegetables, everything to us. Yes. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Easley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Yeah, so food is a gift. अगर हमें कोई गिफ्ट देता है तो क्या हम उसका पैसा देते हैं? नहीं, right? So food is a gift, and when someone gives us gift, what we say thank you, है ना? हम लोग grateful होते ही हैं। So food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature did not supply us with the correct, soil, nutrients, water to grow food. तो देखिए ये कौन कौन इन्वॉल्व है, कहाँ से है। अगर नेचर में कितने बैरन जमीन होती है ना, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं, अगर वैसा होने लग जाए तो भी हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा खाना पीना। आपको एक स्टाफ को भी बोलेंगे जो भी काम कर रहे हैं, देखिए ना भाभी जी, इस खाने के लिए तो कर रहे हैं, फूड के लिए ही कर रहे हैं। तो एवरीवन इज वर्किंग फॉर इट। हम लोग रोज इतना क्यों कमा रहे हैं, बाकी सब को भूल जाइए, बट फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स। फूड, उसके बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे, आगे कैसे कमाएंगे। But have we ever given our gratitude to food which we are consuming every day? अभी पैंडेमिक में जैसे लॉकडाउन हुआ, कैसे सब भाग भाग के सब सामान लेके आ रहे थे, isn't it? स्टोर कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे, because we were scared कि बाकी सब चीज के बिना चलेगा लेकिन फूड के बिना कैसे चलेगा। उस समय रियलाइज हुआ उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि बहुत इजीली अवेलेबल था ना, तो हम लोग बहुत ज्यादा ग्रांटेड वे में ले लेते हैं, जाओ खरीदो लाओ, खाना का क्या है। बट पैंडेमिक में जब लॉकडाउन हुआ, वी रियलाइज कैसे सब स्टॉक करने लग गए थे हम लोग, isn't it? और जो रोज देते हैं हैंड टू माउथ, उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो गया था। तो राइट, सो एवरीथिंग इज फूड, और उसको हम लोग क्या अभी तक रोज थैंक यू बोल रहे थे बिफोर कंज्यूमिंग? यस, नो। एंड फूड, एंड विदाउट वाटर देयर वुड बी नो फूड, वेजिटेशन, एनिमल्स और ह्यूमन लाइफ। ये तो पता ही है हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज। इट हैज बीन सेड, वाटर वाटर वाटर, ग्लोरियस वाटर।
Imagine ourselves one day without water. ऐसे लगेगा बिना पानी के क्या है, मिनरल वाटर ले आएंगे. पहले मिनरल वाटर था, आजकल इतना हम लोग करने लगे हैं मिनरल वाटर. देयर इज नो वाटर, वाटर की कमी भी होने लगे बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो गए थे फॉर वाटर. कभी भी हम लोग ने उसको इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं. एंड वाटर मतलब हर एक इंडस्ट्री, टेक एनी इंडस्ट्री एंड वाटर इज द इंग्रेडिएंट, इट इज रिक्वायर्ड, इजंट इट. हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे भी जाते हैं तो पानी चाहिए. कोई फैक्ट्री में भी कुछ काम हो रहा है, चाहे वो ग्लास है, प्लास्टिक है, व्हाटएवर इट इज, वाटर इज नीडेड. एवरीवेयर वाटर इज नीडेड. कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, चाहे कपड़ा, टेक्सटाइल, कहीं भी है, फॉर डाइंग एवरीथिंग वाटर इज रिक्वायर्ड. एक दिन बाथरूम में अगर पानी नहीं हो तो बाथरूम कैसे यूज करेंगे, खाना कैसे बनेगा, तब हम लोग सोच के एक बार बिल्डिंग का बंद हो जाता है, कैसे वो 2-3 आवर्स निकालना भी हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है. 3 आवर्स के लिए पानी नहीं रहेगा. So we try to, save water, conserve water. So that time we realize, but then again we forget. So पानी भी. एक सेकेंड मैम, आज मैं अंकित अग्रवाल बोल रहा हूँ, मैं वीडियो ऑफ करके बैठा हूँ. जस्ट एक सेकेंड, आपने जो पानी की बात बोली मैम, आज मेरे साथ यही हो रहा है. न सुबह से पानी नहीं है मैम, मोटर खराब हो गई है, मोटर जल गई है. आज पता चल रहा है कि पानी की क्या वैल्यू है. ट्रू. क्या वो रिलेशन चल रहा है एकदम. देखिए क्या मतलब, आपने जब अभी बोला एक दिन बिना पानी के, देखिए आज मेरे साथ हो रही है. So let us start being grateful for our water. जो मैम मैं तो उस मोटर को भी बोला, भाई तेरे को कभी ग्रेटफुल नहीं किया, आज तो बोल रहा अब तो पानी लेकिन वो बोलता बेटा आज नहीं मानूंगा. हाँ, वो हम लोग को कुछ सिखा के ही जाएगा ना. अभी यही बात है. अब पूरा दिन आज कैसे निकलेगा पता नहीं. अब वो कल तक रिपेयरिंग होगा ना, 2 दिन लगेगा. मैम जो हालत चल रही है, ट्रस्ट में, आपने अभी बोला था मेरे को, वो मैं एकदम ये रियलाइजेशन हुआ है. देखो आज पानी का क्या महत्व होता है, अभी वही सोच रहा था. एक ग्लास पानी पिया तो पूरा ही पिया. पहले तो हम लोग क्या करते हैं, आधी गिलास छोड़ भी देते थे. आज बोला नहीं भाई, आज तो तेरा भाव पता चला कि तू कितना प्रीशियस है भाई. True, Ankit ji. So stay with the chapter and start paying gratitude. So every time you have a sip of water, please pay gratitude. Thank you for sharing. We'll take it in the end again. Yeah, sure. Yes. So if there is magic on this planet, it is contained in water. अभी भी बोलते हैं ना, जहाँ पानी है वहीं पे लाइफ है. हम लोग अभी भी दूसरे ग्रहों में भी ढूंढ रहे हैं ना कहाँ पानी है, क्योंकि पानी होगा तो लाइफ होगा. इट इज दैट इम्पोर्टेंट. और कितने कंट्रीज वगैरह में भी अगर बोलते हैं ना जहाँ पानी की कमी है, डेजर्ट है, कहीं ना कहीं उन लोग सब अनग्रेटफुल हुए होंगे. दैट इज वाई, एंड बिकॉज अगर उस जगह पे भी उन लोग हैं, बिकॉज दे हैव नेवर बीन ग्रेटफुल टू वाटर. तो इसीलिए उनके सर्कमस्टांसेस, लोग उनके अगल बगल में सब ऐसे ही मिलते जाते हैं. इफ वी आर रियली अनग्रेटफुल. Yes, continue, Archana. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yes. So wherever we see, but here we are on this beautiful planet. हम लोग अपने अर्थ के लिए कभी ग्रेटफुल हुए हैं जहाँ हम लोग रह रहे हैं? कभी नहीं बोले होंगे ना. See, so this is such a beautiful planet जहाँ पे हम लोग को वाटर अवेलेबल है, इसीलिए हम लोग का लाइफ है. इतना जॉय मिल रहा है. इट इज नेचर्स गिफ्ट ऑफ फूड एंड वाटर टू अस. वो अबंडेंस में है. पहले तो बहुत ही पानी था, अभी बोल रहे हैं कि रिवर्स आर ड्राइंग अप, क्योंकि हम लोग बहुत ही नाशुक्रे हो गए थे लाइफ में. और जितना बोलेंगे उतना ही वो होता जाएगा. लेकिन हर चीज यूनिवर्स अबंडेंस में दिया है. एवरीथिंग इज देयर इन अबंडेंस. वी आर नॉट अट्रैक्टिंग इन अ लाइफ बिकॉज वी आर बीइंग अनग्रेटफुल डे बाय डे. So to say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude. तो अब से क्या होता है ना, पानी जब हम लोग पीते हैं, कितने जन ने कभी रुक रुक के भी पानी पिया होगा? ग्लास उठाया, पिया, रख दिया. Never considered anything. पानी तो है. हमेशा ऐसे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, अरे एक पानी के लिए ऐसे क्या कर रहे हो यार, दे दो या पी लो, है ना, हो गया, आधा फेंका, जैसे अंकित जी बोल रहे हैं. So try to take a sip of water very slowly
and say thank you and then have. नहीं तो लगेगा पानी तो टेस्टलेस है, कोई टेस्ट ही नहीं है, लेकिन वो भी एक अमृत बन सकता है if we put a gratitude into it and then start having, and it will have a magical effect on our health as well, right? It reminded me to have, पहले मैं भी ऐसे बहुत कम पानी पीती थी और ऐसे पीती थी, but now and in health में मैं बोलूंगी कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज आप पानी को हमेशा ग्रेटिट्यूड दे के पीजिए, इट डज मिरेकल, बिकॉज 70% ऑफ द अर्थ इज वाटर, 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हम लोग सबको पता है। आई म्यूट एवरीवन, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस, incredible एक सेकंड, 70% ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर, और हम लोग का बॉडी भी 70% वाटर से ही बना हुआ है। तो आप देखिए जो इतनी ज्यादा पानी से है, तो उसकी एक तो अर्थ में कमी कैसे हो सकती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। वो है, वो हम लोग नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और बॉडी में भी आप सोचिए उसका कितना इफेक्ट होगा हमारे बॉडी में, हेल्थ में, और अगर हम लोग उसको बिना ग्रेटिट्यूड दिए पी लेते हैं तो उसका कितना ऑपोजिट इफेक्ट भी होता है, राइट? So it is very important with every sip of water, whenever you have, अगर कोई एरिया में कोई आपका ब्रेकडाउन है तो आप उस एरिया के लिए बोल सकते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर फॉर हीलिंग माय नी। नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना है कि फॉर हीलिंग माय पेन और मेकिंग मी पेन रिलीफ, इसमें बोलना है फॉर हीलिंग माय नी, थैंक यू वाटर फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय हेयर एंड फॉर ग्रोइंग न्यू हेयर। हम लोग किसी चीज के लिए भी, और पूरे अगर आपको लग रहा है कोई भी पर्टिकुलर एरिया का नहीं है, वी कैन ऑलवेज से थैंक यू वाटर बिफोर टेकिंग अ सिप फॉर हीलिंग 100 ट्रिलियन cells in our body. There are 100 trillion cells in our body which are working 24/7. तो हम लोग ये बोल के भी पीजिए, it will do miracle to our body, right? It has a very positive effect. हाँ जी। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. In Right. addition, एक सेकंड, your तो इफ इनफ पीपल, मतलब यहाँ पे मास ग्रेटिट्यूड का इंपॉर्टेंस बताएं, जैसे बोलते हैं ना मंदिरों में बहुत जन मिल के अगर हम लोग प्रे करते हैं तो हम लोग का आंसर हो जाता है, वैसे ही आप देखेंगे ट्राइबल्स वगैरह में भी नहीं होता है, जब उन लोग को बारिश चाहिए होता है तो सब मिल के एक साथ एक तरह से प्रे कर रहे होते हैं, तो दे आर एक्चुअली कॉलिंग द यूनिवर्स एंड आस्किंग फॉर इट, so it has a huge effect. तो इसीलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं it would actually help the people who are starving and in great need. अगर हम लोग वर्ल्ड सप्लाई के लिए भी अफेक्ट करता है, अगर हम लोग रोज नेगेटिव बातें करते हैं और अनग्रेटफुल होते हैं टुवर्ड्स फूड एंड वाटर, इसीलिए इतने खाने की कमी हो गई है, इसीलिए पानी की इतनी कमी हो गई है। So by the law of attraction, every action has an equal and opposite reaction. So जितना हम लोग करेंगे उससे ज्यादा हम लोग को फिर मिलेगा। So Newton's law of action and reaction, मास ग्रेटिट्यूड का जो है, उसी जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे उसी अमाउंट में हम लोग उसको रिसीव करेंगे। तो हम लोग का जो सर्कमस्टांसेस है ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फूड एंड वाटर विल चेंज ऑन द प्लैनेट। So from today, let us do that. Yes. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. तो इन एडिशन हम लोग का ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फूड एंड वाटर, क्यों? क्योंकि हम लोग जैसा भी एनर्जाइज करके उसको खाएंगे पिएंगे वही हम बनेंगे। अगर नेगेटिविटी के साथ खाएंगे तो नेगेटिव पर्सन बनेंगे, पॉजिटिविटी के साथ खाएंगे पिएंगे तो पॉजिटिव बनेंगे। तो अगर हम लोग अच्छे भाव में रहेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तो ऑब्वियसली ग्लोरियस गोल्डन थ्रेड, मतलब जो बोलते हैं ना मोती की माला, हम लोग पिरोने लगेंगे, एक के बाद एक हम लोग के साथ अच्छा ही अच्छा सब होने लगेगा, and it will not be difficult for us to attain our dreams and desires. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing
And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Yes, तो कल मैंने ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में बताया था कि अगर कोई हम लोग को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो हम लोग चेंज हो जाते हैं. अब आप सोचिए कोई खाना बनाया नेगेटिव भाव से, कोई खाना बना रहा है तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आ गई है. अब हम लोग अगर खाने के पहले अगर हम लोग उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं तो हम लोग अपने ही भाव से हम लोग उसको एनर्जाइज कर रहे हैं बाय बीइंग ग्रेटफुल. उससे हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, राइट, और फिर हम लोग उसको खा रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू ये ऑब्जर्वर्स इफेक्ट हो रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको पता है तो वो हम लोग क्या भाव दे रहे हैं वो चेंज हो रहा है, तो वो बॉडी में हम लोग के वैसे ही वर्क करता है. कल मैंने आप लोग को ये बताया था ऑब्जर्वर इफेक्ट वाला, इसका यहाँ पे यही मतलब है. So they are purified so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body, right? अगर कोई गुस्से में खाना बना रहा है तो क्या जा रहा है हमारे अंदर? गुस्सा जा रहा है. नफरत के भाव से खाना बना रहा है, हमारे अंदर क्या जा रहा है? नफरत जा रहा है. इसीलिए जैसे मनी को हम लोग एनर्जाइज करते हैं, चार्ज करते हैं, वैसे खाने को भी अपने अंदर डालने से पहले हम लोग को हमेशा हमेशा चार्ज या एनर्जाइज करना चाहिए. हाउ दैट कैन बी डन? Through our gratitude, by being grateful and thankful. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. तो कितनी बार होते हैं ना जब हम लोग टीवी देखते हुए खाते हैं, हम लोग सब फटाफट खा लेते हैं और जिसने कुक किया वो आके पूछते हैं ना कि कैसा था? हाँ ठीक ही था, हाँ अच्छा ही था, इसमें ये चीज कम है, क्या आप बोल पाते हो? नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोग ने फटाफट खा लिया उसको. और किसी से ऐसा ही करते हैं, कुछ टीवी देख के फोन में बात करते हुए खा रहे हैं. डू वी नो द फ्लेवर एंड द टेस्ट? वी जस्ट फॉलो इट, राइट? अब कैसी बातें कर रहे हैं आप किसी से, हो सकता है कोई आपको कुछ बोल रहा है, अपना कुछ स्टोरी सुना रहा है जो नेगेटिव है, उसमें आप ऐड ऑन कर रहे हो और आप उसको खा भी रहे हो. तो दिस इज वेरी रॉन्ग. अगर आप खा भी रहे हैं तो आप बोलिए या तो हम बाद में बात करेंगे या पहले बात कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आपसे खाएंगे. खाते खाते बात नहीं करेंगे. एंड सो वी फ्रॉम टुडे जब भी हम लोग खाएंगे, वी मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेस्ट ऑफ द फूड इन आवर माउथ. जो हम लोग खा रहे हैं हम लोग ऑब्जर्व करेंगे क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और उसको हम लोग एनर्जाइज करके ही अपने उसमें खाएंगे. Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. If it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. Yes. So आज भी before eating or drinking, take a moment to look at what you are about to eat or drink. जो हम लोग अभी बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह में डाल रहे थे ना, आप देखोगे जब आप खाली उसको कॉन्सेंट्रेट करके खा रहे हो ना, मेरे को तो लगता है कम भी खाया जाएगा. जो हम लोग, क्योंकि याद ही नहीं हम लोग कितना कंज्यूम कर लिए जब किसी चीज में हम लोग बिजी होके खाते हैं तो. और अगर वही हम लोग का ध्यान वहां रहेगा, उसको खाएंगे क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा. आज तक तो मुझे ये रोज हमारे घर में बन रहा है, लेकिन ऐसा टेस्ट तो अभी तक पता ही नहीं चला. खाली रोटी का टेस्ट क्या होता है वो कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, कभी रियलाइज किया ओनली प्लेन रोटी का भी कोई टेस्ट होता है, राइट? तो बट वी डोंट ऑब्जर्व बिकॉज हम लोग मिला के बस जैसे भी है उसको बस अंदर जाना चाहिए, पेट भरना चाहिए, ये सोच के खा लेते हैं.
तो इसीलिए कितनी बार इंडिजेशन वगैरह भी हो जाता है. वी डोंट ईट इट विद गुड फीलिंग, विद गुड थॉट. So it is very important to observe and then you say thank you and then eat instead of just gobbling it. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shake of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. राइट. तो यहाँ पे रॉन्जाबन बोल रही है, वो क्या करती हैं कि आप ऐसा खाने से पहले, अब हर जगह तो आप बाहर में जाओ के ऐसे करोगे तो शायद इट्स अ वेरी गुड जेस्चर. अगर आपको कूल हो, आप कर सकते हो, तो प्लीज बिफोर ईटिंग योर फूड यू कैन प्रे इन ग्रेटिट्यूड. एंड अदरवाइज आप जैसे कि अपने हाथ से जैसे स्प्रिंकल कर रहे हो, मैजिक डस्ट एक चैप्टर आएगा, नहीं तो खाने पे जैसे आप एक जादुई छिड़काव कर रहे हो, मतलब ग्रेटिट्यूड का. This is with love, lots of love and energy and good vibration and being grateful. Thank you for this delicious meal which has been served to me by my cook या by my wife. कुछ भी आप बोल के, by my mother, आप कुछ भी बोल के और उसके बाद वाओ उसको सेवा करेंगे. You can do that. या फिर जैसे यहाँ रॉन्जाबन बोलती है, जैसे वो नमक और उसका वो शेकर आता है ना, we keep it on the table, वो वैसा करती है कि जैसे उस पर कुछ छिड़काव कर रही है मैजिक डस्ट का, as if you are sprinkling and then you have it. तो ये सबका अपना अपना है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे हम लोग ऐसा कर सकते हैं. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Now, अगर इसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अभी हम लोग प्रैक्टिस में नहीं है, तो एट टाइम्स वी माइट फॉरगेट आल्सो बिफोर ईटिंग. तो यहाँ पे अगेन एक लाइफलाइन है, तो भी अगर हम लोग भूल भी गए, ओ नो आज मैंने खाने से पहले ये नहीं किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मन में उसके पास के टाइम पे पहले जा सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन बी ग्रेटफुल कि खाने में आज मैंने ये आलू का पराठा खाया था, उसके साथ ये अचार लिया था, दही लिया था, रायता लिया था. ओ वाओ, थैंक यू फॉर सच डिलीशियस मील एंड थैंक यू फॉर going inside my body and healing me and feeding me and keeping me full. आप कैसे भी उसको धन्यवाद दे सकते हैं, जो बनाए हैं उनको भी दे सकते हैं. तो उसको if you forget to be grateful for food and drinks multiple times, then repeat this same practice tomorrow. यहाँ पे बोल रहे हैं tomorrow, but I would say अब हम लोग इसको एक तो अपने हैबिट ही बना लेंगे before eating and drinking, because it is such a crucial part, isn't it? कितना important है जो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है. हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ तो सब चीज के लिए, और सबसे ज्यादा ये हमारे वैसे हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ के लिए भी, राइट? व्हाट वी आर थिंकिंग इज व्हाट वी आर ईटिंग राइट नाउ, इजंट इट? तो उसको हम लोग चार्ज अप करके, एनर्जाइज करके, ग्रेटिट्यूड दे के ही कंज्यूम करेंगे अब से. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. So हम लोग को लग रहा है ये सिंपल थिंग है, बट आई थिंक इट इज नॉट दैट सिंपल. इट इज एवरी डे. एक दिन हम लोग फास्ट करते हैं, सेकंड डे तक हम लोग बस टाइम फिश हो जाती है हमारी. So we have to be grateful. It is not that simple. Food and water, deepest expression of gratitude when 70% of our body and our brain also, I think 70-80% brain में भी पानी ही ज्यादा रहता है, राइट? तो कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पॉजिटिव एनर्जी दे के पीने के लिए. कभी हम लोग ब्रेन के लिए भी दे सकते हैं. मेरा जैसे जब हेडेक हुआ था, तो व्हेनेवर आई वाज सिपिंग वाटर, आई यूज्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू माय ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स, राइट, टू मेमोरी, एवरीथिंग. तो यू विल सी द मैजिक हैपन. कितने डिग्री में आप कितनी बार दे रहे हो. एक जापानीज डॉक्टर इमोटो करके है, आप यूट्यूब में भी देखोगे, और पावर बुक में हम लोग ने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया है.
वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने 3 जार्स बनाया था, उसमें एक में लव, एक में हेट और एक में इग्नोर, राइट। हम लोग ने सिर्फ 2 जार्स से किया था, लव एंड इग्नोर, बिकॉज वी डिड नॉट वांटेड टू यूज हेट्रेड। तो 2 जार में हम लोग ने पानी डाला और उसमें कुक्ड राइस डाला। तो जो इग्नोर वाले जार को मेरा पर्सनली भी किया हुआ है और मेनी पीपल इन द सेशन हैज आल्सो डन। तो हम लोग ने जो इग्नोर जार को हम लोग ने एक ऐसे कोने में रख दिया जहाँ पे हम लोग ने उसको कभी देखा भी नहीं और पूरा इग्नोर किया। और जो लव वाला जार है उसको हम लोग रोज हाथ में लेते थे और उसको आई लव यू माई राइस, आई लव यू द फूड, आई लव योर कलर, उसको रोज हम लोग बहुत ही प्यार देते थे, दिन में कितनी बार। और उसको जैसे मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखा और चलते फिरते हमेशा उसको करती। आफ्टर अ मंथ और सो हम लोग ने देखा जो इग्नोर वाला जार था उसका पूरा येलो कलर होके पूरा खराब हो गया, फंगस आ गया। एंड जो लव वाला जार है वो एज इट इज व्हाइट और इंटैक्ट था। लुक एट द पावर ऑफ आवर लव, ऑफ आवर फीलिंग। हेट्रेड, इग्नोर, ये सब जो फीलिंग हम बोलते हैं ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट डज ट्रेवल, इट डज रीचेस द अदर थिंग, सो इट डज हैव अ इफेक्ट। आप लोग पर्सनली भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मैंने किया है और बहुत सारे लोगों ने किया है एंड वी हैव सीन। तो इट इज दैट पावरफुल, वाटर तो स्पेशली। और इसका एक और भी, थैंक यू, कहाँ गए वो, अर्चना जी, फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस सो नाइसली, थैंक यू। यस, आई कैन सी। और इसका हम लोग ने एक तो वाटर का इफेक्ट भी देखा है, म्यूजिक से कैसे उसके चेंजेस हो जाते हैं वाटर। हैव यू सीन? यूट्यूब में चाहिए, इनके वीडियोस देखिए। आई डोंट वांट टू फिल the molecules change, the structure of the molecule of the water changes. molecules change, आपका कैसा Yes, yes. तो इट इज ऑल में जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, एवरी टाइम। सो हम लोग जो सोच रहे, बोल रहे, लग रहा है ना, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। It is there. So especially water, whenever we are consuming, always put the positive energy in it, you know. And वो लगेगा positive energy क्या होता है? This is by saying thankful and being grateful to your water and then consuming it. And even so, that too with food as well. So it is very effective, very powerful, and very important chapter for all of us. पायल जी, if we think that we shouldn't waste food and water, जैसे मैं कई बार सोचती हूँ, there are so many people who do not get once a day, मतलब एक मील भी उनको नहीं मिलता है. So I always feel that we shouldn't waste food or water in any way. So that is also being grateful in a way, isn't it? Being grateful to food and water, it is giving respect. Yeah, waste नहीं करना चाहिए, हम लोग सबको पता है. But the thing is देखिए, हम लोग इतना waste हो रहा है ना, we can't control it. आप ये सोचो ना, इसमें भी हम लोग कैसे पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं. अब बच्चे लोग तो थोड़ा बहुत छोड़ेंगे ना, हम लोग बार बार उनके पीछे पड़ेंगे तो अगेन वी आर बीइंग नेगेटिव विद द चाइल्ड, राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उसमें पॉजिटिव क्या ढूंढ सकते हैं. आप ये कर सकते हो, आप उसको फेंकने से पहले आप सबको कलेक्ट कर सकते हो. बाहर किसी डॉग को थोड़ा सा कुछ बचा है तो कोई बर्ड को, अरे उनके लिए भी तो फूड हो जा रहा है ना. हाँ, और ये सोचिए बायोडिग्रेडेबल है, हम लोग थोड़ा सा एफर्ट लेके उसको जैसे बोलते हैं सेग्रीगेट करके अपना हटाना चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचेंगे, कहीं ना कहीं कोई तो उसको कंज्यूम कर रहा है ना. Like I collect all the peels during the day and I give it to a cow to eat. So I'm not doing that. I try to do it most of the days. हाँ, ठीक है ना. हम लोग उसका उतना सोचने बैठेंगे तो हम लोग फिर बिलो द लाइन नेगेटिव में चले जाएंगे. तो ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कोई इसको कंज्यूम कर ही रहा है, right? It is not going to waste, and we can make a little effort by collecting all the food which has been leftovers जो होते हैं, उसको हम लोग कोई भी डॉग को या काउ को या कहीं भी हम लोग डाल सकते हैं, so that they consume and it is filling someone's stomach. So very powerful chapter, food and water we are consuming. पता नहीं दिन में कितनी बार हम लोग खाते पीते हैं, चलते फिरते, you know, we just put it in our mouth without even thinking कि हम लोग के thoughts क्या. अभी बच्चों को गुस्सा किया, and especially जब बच्चों को गुस्सा कर रहे हैं, जब डांट रहे हैं, even don't let them eat and you also don't eat at that time, right? क्या जा रहा है अंदर, गुस्सा जा रहा है. जो हम लोग जो न्यूज देख के खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या दिखा रहे हैं, वॉर दिखा रहे हैं या यू नो सिर्फ आर्ग्यूमेंट दिखा रहे हैं. सो व्हाट इज गोइंग इनसाइड, ये सोचिए जो हम लोग देखते देखते खा रहे हैं वही तो सोच रहे हैं ना, दिमाग में वही थॉट्स एंड फीलिंग्स है, दैट इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी. फिर लग रहा है इस आदमी में इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है, अरे हर वक्त तो यही सब देख रहे, सुन रहे और उसको खाना खा रहे हैं. आप देखोगे कितने जन जो बिजनेस कर रहे हैं या शॉप में बैठे हैं, अब उनको इतना गुस्सा आ रहा है यू नो स्टाफ पे,
वो खाना खा रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, तो बोलते बाबू को कितना गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो हम लोग गुस्सा ही खाते जा रहे हैं, तो वही तो फिर बाहर आ रहे हैं ना, isn't it? So when we take time out, when we are eating, उस समय आप फोन को चाहे दूर रख दीजिए या साइलेंट में रख दीजिए. We can always take call a little later. कितना 5-10 मिनट लगता है खाना खाने में, right? At the most. तो हम लोग उस समय उसको क्या कर सकते हैं, साइलेंट में रख सकते हैं. एंड पहले जब मोबाइल नहीं था तो क्या करते थे, जब फोन आएगा तब बात करते थे, तो करते थे ना, वो हर एक चीज का वे होता है. अभी हम लोग को इजी हो गया है, हाथ में फोन आ गया है तो क्विकली बात उठा लो, बात कर लो, लग रहा है 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है. बट दिस इज हमको तो है ना बुक पढ़ना भी अलाउड नहीं था खाते वक्त. ऑलराइट, मतलब when you are eating you should eat only. राइट. उठना भी नहीं कर सकते. मैं बोलती हूँ कम से कम नेगेटिव थॉट और माइंड तो मत रखो ना. और जिनके यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज हम लोग ने मैम बताया, आई हैव स्टार्टेड डूइंग लास्ट ईयर से, एंड ये भी मैजिकली मेरे लाइफ में आ गया. बोलते हैं जो खाने की जगह होता है ना किचन में, कोई ओम मंत्रा या ये सब कुछ चला देना चाहिए. I do. I have a Mahamantra Krishna Hare Krishna Hare Krishna. I have played that. मेरे किचन में रहता है. Whenever जब भी मैं कुक करना स्टार्ट करती हूँ मैं उसको प्ले कर देती हूँ. और मेरे घर में भी है. बहुत इट्स रियली इफेक्टिव. बहुत ज्यादा. ज्यादा. खाना बना रहा है वो किस भाव से बना रहा है. आज सोचे कुक के लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या क्या चल रहा होगा. मैं ये नहीं बोलती हूँ खुद हाथ से खाना बनाने लग जाइए, लेट हिम मेक. लेकिन जब वो खाना बना रहा है ना, एक तो तब उनको जाके डांटिए मत, राइट? क्योंकि वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ जाएंगे. देन विल स्टार्ट कुकिंग दैट वे. तो वही एनर्जी उसमें जा रहा है. डोंट स्कोल्ड हिम एट दैट टाइम. अच्छे से बात करिए, बाद में आप उनको कुछ बता दीजिएगा. और यू पुट ऑन दिस ओम मंत्र समथिंग व्हाटएवर द चांटिंग, इट इज रियली इफेक्टिव. तो मेरे भी किचन के बाहर मैंने रखा है. एंड दैट टू आई वाज वांटिंग दिस, आई हैड थॉट ऑफ दिस, एंड माय फ्रेंड कॉल्ड मी ऑल ऑफ अ सडन कि पायल मेरे फादर इन लॉ ने दिल्ली से मंगाया, यू वांट दिस. आई सेड ये तो मैजिकली मेरे लाइफ में आया. आई एम लाइक यस यस प्लीज सेंड इट अक्रॉस. तो क्योंकि मैं कलकत्ता में ढूंढ रही थी, मुझे मिला नहीं है कहीं पे भी. तो उसके बाद शी कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली, so I got it and it's really working wonders and it's a very good way. अब से ध्यान रखिएगा जब कोई खाना बना रहे हैं, आप भी कुछ खाना बना रहे हो तो अगर आप अच्छे मूड में नहीं हो, गुस्से में हो, तो मत बनाइए. Try to make it when you're in a happy mood. Put on some nice music जिससे मन अच्छा होता है. You feel like put on some nice music and then cook. मैं तो because I'm not fond of cooking, I do that. When I have to cook, I put on music and then I make. So find your own ways and we can do it. Yeah, so let's pay gratitude. फिर हम लोग sharing या questions ले लेंगे because जिनको फिर log off होना है can log off. Thank you, thank you, thank you God for giving us abundance of food and water in our life. And so many people involved in growing them. Thank you to all the farmers, to all the people involved in transporting them to us and so easily available to us. Thank you all. Thank you, thank you. Yes, किसी का कोई question or sharing or query? नहीं तो मैं तो बोलते ही जाऊंगी. I have a sharing. Wow, yes पूजा. मेरा ना वॉशिंग मशीन मतलब खराब हो रखा है. वो चल नहीं रहा. खराब इन द सेंस स्पिन हो रहा है, वॉश नहीं हो रहा है. तो हम लोग हाथ से कपड़े धो रहे हैं. तो अभी मेरी 2 दिन से सिस्टर इन लॉ, दोनों सिस्टर इन लॉ आई हुई है और बारिश का मौसम है. तो ठीक है, हम लोग जैसे तैसे सब कपड़े धो लेते थे और फिर स्पिन करते थे. आज क्या हुआ, स्पिन भी नहीं हो रहा है. स्पिनिंग भी वो खराब हो गया. अब हम लोग सोचे इतने कपड़े, बच्चे भी इतने, सबके बच्चे. तो फिर मेरी मदर इन लॉ पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही है उस स्पिन करने का. वो हो नहीं रहा है. देन शी केम टू मी, बोला पूजा यू गो एंड ट्राई. वो नहीं हो रहा है. हम बोले यार वो चल नहीं रहा है. फिर मैंने क्या किया, मैं गई मशीन के पास में, फिर मैं खड़ी हुई, उसको बहुत अच्छे से टच किया. टच करने के बाद मैंने स्टार्ट किया और मन में थैंक यू. मैंने आज तक देखो थैंक यू नहीं बोला. आज बहुत दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि कितना मेरे लिए हेल्प किया, कितना. और वो स्टार्ट हो गया तुरंत, एक बार में स्टार्ट हो गया. मतलब मेरे को तो इतना अच्छा वाला फीलिंग आया ना उस वक्त, मैं बता नहीं सकती. और मैं ना हर चीज में थैंक यू, मतलब मॉर्निंग में उठते के साथ मेरा थैंक यू स्टार्ट होता है मन में. और लगता है कि मेरे पास कितना कुछ है थैंक यू बोलने के लिए. बाप रे बाप, खत्म ही नहीं होता थैंक यू का प्रोसीजर. बहुत अच्छा वाला. मेरी लाइफ तो बहुत ट्रांसफॉर्म हुई है, बहुत ज्यादा. थैंक यू. लवली शेयरिंग. ऐसे ही होता है ना, हम लोग सोचते हैं ना ये तो नॉन लिविंग थिंग है, व्हाट विल दैट थिंग अंडरस्टैंड, इसको क्या थैंक यू बोलना है. तो लो खराब हो गया, नाउ यू डू विदाउट इट एंड देन वी रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट थिंग.
और सेम मेरा भी शेयरिंग मैंने पहले भी किया, मेरा भी एसी वाज नॉट वर्किंग एंड आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर वो वर्क किया सिर्फ ग्रेटिट्यूड से। वो माहौल लॉकडाउन हो गया, आई कुड नॉट कॉल द मैकेनिक एंड हुआ ही नहीं। एवरी टाइम बिफोर स्टार्टिंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय एसी, आप कितना मेरा ध्यान रखते हो, ऐसे मौसम में आप मेरे को ठंडक देते हो, कंफर्ट देते हो एंड इट स्टार्ट्स। माय डॉटर से ये क्या स्टार्ट करने के पहले आप ये क्या बोल रहे हो? हम लोग वेट ऐसे मेरी भी बहुत सारी शेयरिंग है। पता है मेरी भाभी का लैपटॉप खराब हो गया था, उसके बेटे ने सुसु कर दिया। ये तो अभी 4-5 महीने के बाद वो ऑफिस का काम, अब उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बोला दीदी मेरे को तो लैपटॉप उसने सुसु कर दिया। मैं गई अच्छा ठीक है एक बार मैं ट्राई करती हूँ, बस मैंने फिर स्टार्ट कर दिया और वो ऑन हो गया, लैपटॉप स्टार्ट हो गया। Yes, belief is also very important. You have that belief in you कि ये होगा मेरे gratitude से। अगर डाउट और के साथ करेंगे ना बस ये होता थोड़े let me try, तो वो नहीं होगा because the doubt is always there in your mind. So belief is very important. Very good, Pooja. Keep on practicing and I wish you more magic in your life. Thank you so much and thank you to you also। मतलब आप सच में शायद यूनिवर्स ने आपको भेजा है हम सबकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं तो चाहती हूँ आप भी किसी को करिए, अपने सिस्टर इन लॉ घर में आए हुए हैं I said them, मैंने उनको बोला कि मैंने उनको एग्जांपल्स के साथ बताया कि देखो मेरे को ऐसे ब्रेकडाउन था, लेग में बहुत ज्यादा था, फिर मैंने उसको बताया, उसको भी काफी प्रॉब्लम्स है, तो वो मेरे को पूछ रही है ऐसा होता है क्या। मैंने बोला ऐसा हुआ है, आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, आप भी करो। ठीक है आप अभी क्लास नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट यू स्टार्ट प्रेइंग ग्रैटिट्यूड अपने हर बॉडी ऑर्गन्स को, अपने सेल को, अपने सारा अपना पूरा इम्यून सिस्टम को। तो फिर बाद में शी सेड ओके, मैं भी, फिर वो भी बोल रही है मैं कर रही हूँ भाभी, अंदर में मेरे को थोड़ा अच्छा वाला फीलिंग आया। मतलब आप करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाओ इस चीज को, बहुत इफेक्टिव है। Absolutely. Wonderful, Pooja, and so nice to hear कि you are spreading this magic in everyone else's life. हाँ, और दूसरे को खुशी देने में ना ज्यादा खुशी मिलता है। Try this out. Exactly. Thank you. Thank you, Pooja, for sharing. Anyone, any query? आज हम लोग को चलो लिखने विखने का कोई प्रैक्टिस नहीं है। Before consuming, we just have to be grateful and we have to say thank you to food and water. So this is all our body is made up of, universe is made up of, water. अच्छा, मंदिर में जैसे जो चरणामृत मिलता है, क्यों हम लोग को इतना अच्छा लगता है ना? उसका टेस्ट देखो अलग होता है ना। मंदिर में जो वाटर रहता है चरणामृत, it is not the usual water का टेस्ट। Isn't it different? Why? वहाँ का एनर्जी वाइब्रेशन मंदिर में तो एवरी टाइम पाठ चल रहा है, चैंटिंग चल रहा है, उसका डिफरेंस उसी का। मंदिर का प्रसाद, हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा के टाइम जो खिचड़ी बनता है इन द पैंडल, इट इज लाइक सो डिलीशियस। क्यों? एक सिंपल सा फूड है लेकिन तो भी कितना अच्छा, क्योंकि उन लोग जो बनाने वाले का भाव, वो मंदिर के एनर्जी वाइब्रेशन इज टोटली डिफरेंट, डिफरेंट करता है। द ऑरा ऑफ द एंटायर मंदिर। कांट हियर यू। तो द बहुत इट डिपेंड्स। तो हम लोग को अपना घर का ऑरा को भी ना चेंज करना है। यू कैन डू दैट। घर का ऑरा ऐसे चेंज हो जाएगा ना, सो एवरीथिंग विल बी लाइक मैजिकल। आप देखोगे इट इज अफेक्टिंग अदर पीपल आल्सो इन आवर लाइफ। So that is how important it is. जिसके पास पानी का घड़ा या मटका जो घर में रखते हैं ना, तो someone shared in the last session also, फोन करते भी थे, I don't remember। तो आप घड़े या मटके को आप पकड़ के मॉर्निंग में जो भर लेते हैं, उसके बाद पकड़ के उसको आप एनर्जाइज भी कर सकते हो विथ योर पॉजिटिविटी। आप उसको करके रख दो, उसके बाद तो पूरे दिन लोग उसमें से पानी पी रहे हैं ना। So we can do that also. बताया था। You do that, Suman? हाँ, गंगा I also do, पायल। मटका में पानी भर के पानी का उसको सवेरे एनर्जाइज करती हूँ, दूध को कर देती हूँ, खाने को करती हूँ। हाँ, ये सब तो छाया जी से सुनना चाहिए। माय गॉड, वेरी गुड प्रैक्टिस। छाया जी एनलाइटन अस। और भी हम लोग को आइडियाज दीजिए कैसे कर सकते हैं। बड़े लोग जो करते थे ना, वहीं पे वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स। यस। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हो दीदी। कैन वी राइट आई लव यू ऑन द लाइक पानी का आजकल तो कैंट रहते हैं, तो कैंट पे हम लोग लिख सकते हैं आई लव यू। हाँ, व्हाई नॉट। हाँ, क्योंकि कैंट से लेकिन आप डायरेक्ट लेके पी रहे हो क्या? हाँ ओके, तब तो पीने से पहले, क्योंकि वो कैंट वेंट में भी क्या होता है ना, बोलते हैं सदगुरु जी जैसे बोलते हैं
कि वो पाइप से कहाँ से वो फोल्ड होके पता नहीं कहाँ से वो आ रहा है, कैसे एनर्जी फ्रिक्शंस होता है, बहुत हाँ, फ्रिक्शंस होता है, तो वो पानी का मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाता है, तो इट अफेक्ट्स योर बॉडी। तो इसीलिए हम लोग को उसको पीने से पहले जरूर एनर्जाइज कर लेंगे। अगर आप घड़े में भर के रख रहे हो तब तो वो एक जगह है ना, आप तो उसको पूरा ही वो कर दियो, दैट इज डिफरेंट। एंड ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना। आई हैव ट्राइड, मेरे पास पता नहीं वो पिक्चर है कि नहीं, प्रियंका तुम्हारे पास है? हाँ, मैं ग्रुप में ही है, मैं उसी में रीफॉरवर्ड कर दूंगी वापस। तो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया है एंड वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ आई लव यू एंड इग्नोर। इवन आई हैव डन दिस, और अभी भी किया हुआ है, अभी भी रखा हुआ है जार। वाओ, मैं group में कर दूंगी। to see the effect and it is true. Yeah. So water is very important. Please पानी पीने से पहले जरूर। एंड लाइफलाइन, फिर लाइफलाइन मिल गई है, अगर भूल गए हैं तो विजुअलाइज करिए पहले उसमें जाके एंड वी कैन ऑलवेज से थैंक यू। सो काइंड ऑफ रोंडा बर्न हम, और यूनिवर्स इज आल्सो वेरी काइंड, हमेशा लाइफलाइन देता है। यस, सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? पायल जी, अंकित अग्रवाल जी। अंकित जी, नहीं सीरियसली आपको बहुत बहुत थैंक्स। उस दिन भी मैंने जैसे ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया कि मेरा जो एक्सपीरियंस था, और विश्वास कीजिए जितने दिन गए हैं इट इज वंडरफुल वर्किंग फॉर मी, ट्रस्ट मी। मेरे मैन पावर की जो रिसोर्सेज थे वो 100% तक आ गए हैं, जिनकी लेवल कम से कम 20-30% थी, जो मैं एवरी डे जो मैं उनको दे रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ जो लेवल ऑफ वर्क एंड ये बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको सही में बोलूं, परसों की क्लास में अटेंड कर रहा था, तो करते करते मेरे को कब नींद आई मेरे को पता नहीं चला। मैं कोई विजुअलाइजेशन करने लग गया आपकी कोई बात में, और पता नहीं मेरी आंख लग गई और क्लास पूरा मेरा ऐसे ही चला गया। एंड आई डिडंट रियलाइज, जब मैं उठा तो वेयर इज माय क्लास यार, मैं क्या कुछ सुना, मैं हूँ या नहीं हूँ। एंड देन आई रियलाइज मैं, अरे वो इट इज ऑलरेडी 6:30 एंड द क्लास इज ऑलरेडी ओवर। तो परसों तो वर्क्स लाइक मैजिक था, तो आप अपने फैक्ट्री के उसमें चले गए होंगे विजुअलाइज करते करते। पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ पता नहीं, एकदम अचानक से गायब हो गया। आज का दिन देखिए मेरे साथ का, जब बता रहा हूँ ना आज जैसे, लेकिन फिर भी नेगेटिविटी एक बार भी नहीं आई मन में, यार ये ऐसा क्यों हुआ, वो हुआ। क्योंकि कल जो नेगेटिविटी के बारे में अपनी थी कि आप नेगेटिव कुछ भी, तो दिमाग में ये था कि नहीं कुछ भी नहीं बोलना है यार, ये ठीक है, इट हैपेंस, ये अपने को कुछ सिखा रही है, चलो क्यों अपने गलत सोचे। यही चीज, बस यही मेरा मतलब अभी तक का यही एक्सपीरियंस अभी भी चल रहा है। मैंने जिंदगी में कभी, आपको ये भी बताता हूँ, मेडिटेशन नहीं किया। कल एक मेडिटेशन किया, इतना मतलब आप सोच नहीं सकता, हम कल्पना नहीं कर सकता कि वेयर आई वाज। मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, शायद किया भी होगा तो खाली हाँ भाई बस ठीक है करना है, बट अल्टीमेटली कल मैंने जो किया है अपना लाइफ का एक्सपीरियंस किया है। लेकिन गुड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल यू गाइज, और ये नहीं और भी किसी का प्रयास है या चाहे जो भी बोलिए, जैसे पूजा जी ने बोला कि यू हैव बीन बीन सेंट बाय समबडी, है तो वही एक्सटर्नल फोर्स है या सुपर नेचुरल पावर्स है जिससे मैं कनेक्टिविटी हो पा रहा हूँ, और आपसे सीख करके और मैं किसी और को भी ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो बोलूंगी सब जगह फैलाइए, तब फिर मेरा ये सफल होगा, बेटर है, बिकॉज जितना ये मैजिक फैले। एंड प्लीज मैं एक निमित्त मात्र हूँ खाली, I'm just universe has chosen me and I'm glad and I'm so grateful to him. तो मैं चाहती हूँ और भी आप लोग सब भी करें, सबका लाइफ ऐसे मैजिकल हो जाए। तो ये जो 95% लोगों के पास बोलते हैं ना जो इतने सक्सेसफुल है, इतना कुछ है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा परसेंट उसमें आ जाए। So let us thank you पायल जी, thank you अंकित जी for sharing, it was wonderful sharing. And अगर इतना जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, so I am all the more happy to hear that. नहीं एप्लीकेशन एकदम चल रही है। मैं बोल रहा हूँ ना, जो भी मेरे साथ होता है आई गो टू टेल इट, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम भी करके देखो। एंड द वर्कफोर्स एनर्जीज मैं देख रहा हूँ ना बढ़ रही है। आज विश्वास कीजिए, जहाँ बारिश का मौसम है, जैसे मैं जिसको ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, जिस भी प्रोडक्ट को, वो पूरा मतलब हमारे फेवर में काम हो रहा है। मतलब मौसम भी चेंज हो रहा है, ऐसा बात नहीं है पूरी धूप निकल जा रही है, बारिश को रोक दे रहा है। आप ये चीज सोचो ना, तो व्हाट वंडरफुल, इससे ज्यादा और क्या मैं फील बताऊंगा आपको, बताइए। बिल्कुल, और क्या। तो आप यू आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड सो नाइस टू हियर ऑल दिस अंकित जी। तो यू आर एन इंस्पिरेशन। और अगर घर में अगर एक जन करने लगे और बहुत जन करने लगे, इसमें भी बहुत फर्क होता है। मैं जिंदगी में ग्रेटिट्यूड तो क्या, वो जैसे बोलते हैं ना कि अपने किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, मैं तो विश्वास कीजिए झाड़ू तक को भी बोलता हूँ, यार तुम तो कितना कमाल का चीज है यार, तुम तो सारी गंदगी साफ कर रही हो यार, तुम्हें तो किसी ने कभी थैंक यू नहीं बोला यार।
कंचन चलो आज तो तुम तो मेरे से थैंक्स ले लो। Lovely. अब डस्टबिन को मैं बोलने लग गया। अब सोचिए, कोई सोचेगा तो ये तो पागल है यार, ये तो कप, मैं तो कॉफी के कप को भी बोलने लग गया भाई तू तो इतना गरम गरम चीज होल्ड करती है यार, मैं तो तुझे अपने उठा करके होठों से लगाता हूँ, तू तो कभी कंप्लेन नहीं करते यार, थैंक यू सो मच। अब आप सोचो और क्या बोलूंगा मैं, इससे ज्यादा और क्या बोलूं बताइए। Absolutely, you are very much into it, अंकित जी। और आपने सच में मुझे भी रियलाइज किया, डस्टबिन को तो आज तक मैंने भी थैंक यू नहीं बोला। नहीं विश्वास कीजिए, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा, मैं बेल्ट पहनता हूँ तो बेल्ट को भी बोलता है यार थैंक यू सो मच, तू मेरे को एहसास कराती है कि मैं पतला हो रहा हूँ या मोटा हो रहा हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या आप उम्मीद करोगे बताइए। मतलब हर एक चीज में मैं तो ग्रेटिट्यूड खोजने, अरे चार्जर को भी बोलता हूँ यार थैंक यू सो मच यार, तू मेरा फोन का कितना ख्याल रख। अब क्या बोलो इससे बताइए। दिस इज द मिरेकल दैट यू हैव यू हैव इंग्रेव्ड इन मी। हर एक चीज को आप थैंक्स बोलने लग गया। Thank you so much, Ankit ji, and keep practicing. Thank you, thank you, thank you, Payal. Thank you. Thank you. Thank So, anyone else? Any other sharing? Are we done for the day? Yes. So keep practicing, and it is very important. Food and water. This is all makes us. See you all tomorrow same time. And the main thing is to stay happy. Negative situations aayenge. It's part and parcel of life. Let us stay above the line. All right. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, Payal Thank you, ji. Payal. Thank you, Payal ji. Thank you, Payal ji. Bye-bye. Thank you, Payal ji. Thank you, everybody. Thank you. Thank you.